एक्चुअली भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक हमारा 256। और आज हमारे जो टॉपिक है वो है बचत की बाबत जानकारी, विश्वास और कंफ्यूजन, पार्ट 3। जो आदरणीय केसी कौशिक साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पूर्व में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आपके बेटे राहुल कौशिक भी एडवोकेट हैं। और आज बड़ी हर्ष का विषय है, हमारे बीच में आदरणीय DK गांधी साहब, जो ऑल इंडिया फेडरेशन AIFTP के प्रेसिडेंट हैं, और जो सत्र हमारा चल रहा है 2022 में, तो प्रेसिडेंट रहेंगे। और जमुना शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त में, वो सेक्रेटरी जनरल हैं AIFTP, जो कि पूरे भारतवर्ष का, जिसमें कि मोर देन 9,000 से ऊपर एडवोकेट्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, चार्टर सेक्रेटरी, ICWA, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, और जिसके कि 5 रीजन हैं: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय DK गांधी साहब, जो कि गाजियाबाद से हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय DK गांधी साहब से कहता हूं कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय DK गांधी साहब। Thank you, sir. Thank you so very much. Respected all present, I am really thankful to Brother Arvind Sharma ji for inviting me on this platform, who himself is illuminating the society by his immense talent. He is a man of transformation since I have been knowing him last 35 years. He is what he is doing is in a very disciplined and consistent manner. That is very important part. And I salute to his work. I admire him like anything. And secondly, I will not be taking much time because it is the topic is so important. And regarding the today's speaker, Shri KC Kaushik ji, I am appreciative of his communication skill. And he knows the art of making friends in spite of varied differences on political issues as well. Today we shall be witnessing his lecture on a social subject of wills. Although today's part third, earlier part I couldn't hear. But friends, what is will, according to my understanding, in few very small words, will is last intention, longing intention worded. Intentions worded in last, which I was longing. That is the basic intent of the will, which I wanted to do something which I could not do and which should be done by my legal heirs. But as far as legal part is concerned, this is defined under General Clauses Act as well. Section 364 says what is will. So this is a definition part only. I will not be saying much on this, but it is a desire of a person. What it says, section 364, person's formal declaration of his intention as to disposal of his property or other matters to be performed after his death. Although two words have not been mentioned in the act itself, but it is taken from the legal glossary given by the government of India, means what, not about the properties, whatsoever anything is left, he may also express his intention for his legal heirs. And friends, this is the legal part, but the very social part of the will is so important that it is difficult to explain to all, because all our seniors, they very well know that how you are at peace and how you want your children to be at peace after you leave this world. This is one part. I will not be speaking on the much subject. I congratulate Arvind Sharma ji, I congratulate Kaushik sir, and I am really happy to note that today my senior Kalra sir is there. I have been seeing him after a long. We have been student of him, and we have learnt a lot of things from him during our college days. But one thing I want to share before, after you hear this lecture, I would request you to read a story of Bhagwati Charan Verma. That is a story of वसीयत. अगर आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, तो I do not see any reason besides legal part, all will appreciate the social part, family part, emotional part, what he could not say about his even the siblings or his part, he told in the will. So that is a very inspirational story which I got through 42 years ago,
and that story is still imprint in my mind. That is a story, Bhagwati Charan Verma Vasiyat. I would request all to go through. They can search on the Google as well, they will be finding. And with this, I wish all the success to respected Arvind Sharma ji for his ongoing process, through which he's keeping all the intended person across the globe together. Today, no doubt, because of the winter, people are come, but this lecture is of going of very useful, and I hope Mr. KC Kaushik, who is the authority on this subject, he shall be doing the justice. Thank you so very much, Arvind ji, for providing me an opportunity to come to your forum. Thank you so very much. धन्यवाद आदरणीय जी के गांधी साहब, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं वो हमारी 11 नवंबर 1976 यानी कि मोर देन 45 ईयर से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें नानी पालकी वाला ने स्टार्ट किया था। अब हम आदरणीय कौशिक साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय कौशिक साहब। धन्यवाद सर। पहले सबसे पहले तो मैं श्री अरविंद शर्मा जी को बधाई देना चाहता। इनका एक ही रूप था कि शांति कुंज से इतने डिवोटेड होते थे कि ये हमेशा जनवरी में कोई ना कोई गाजियाबाद में प्रोग्राम करते थे। उस प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया करते थे और हमें मान के चलते थे कि 5 या 6 तारीख में ये हम लोग को बुलाएंगे, ऐसा हम लोग मानते थे। और इसके बाद में सबसे पहले श्री डीके गांधी जी, जो हमारी एएफटीपी के 2022 के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। जिस अच्छे तरीके से इन्होंने लखनऊ में टेक ओवर किया है, नॉर्थ जोन का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि नॉर्थ जोन, जैसे हम नॉर्थ कहते हैं, उस नॉर्थ की जो झंडा है ये आगे लेके चलेंगे। हम सब इनके साथ हैं और हमें ऐसा उम्मीद है कि जो आने वाला समय है इनका 1 साल, वो इतना अच्छा होने वाला है कि हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसको मैंने खुद अपनी आंखों से लखनऊ में देखा है। तो श्री डीके गांधी जी और इनके सभी पदाधिकारी, जमुना शुक्ला जी भी जिसमें हम लोगों के साथ हैं, और इनके जितने भी पदाधिकारी, उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ जोन के होने के नाते ये पूरे हिंदुस्तान में इसको करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ डीके गांधी साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये ठीक समझा कि ये अरविंद जी के कहने पे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। यदि अतिशयोक्ति नहीं है तो डीके गांधी साहब को इस बात का खुश होना चाहिए कि अरविंद शर्मा साहब भी एआईएफटीसी से बहुत जुड़े हुए हैं और इन्होंने पहला ऐसा प्रोग्राम किया है जो आज 9 तारीख है, जिसमें डीके गांधी साहब और यमुना शुक्ला जी को दोनों को बुलाया है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। मैं पुनः डीके गांधी जी को, यमुना शुक्ला जी को, इनके और जितने पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, और अरविंद शर्मा जी को, सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बड़ा आज के समय में जब कोरोना की बात चल रही है तो बड़ा अहम बन जाता है। हम लोग की कोशिश ये रही थी, पहले 2 भाग जो हमने किए थे, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो श्रोता हैं उनकी जो क्वेरी है उनका ज्यादा जवाब दें, बजाय हम लीगल बात करने की। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो भ्रांति है कि साहब यदि विल हमने कर दी, वसीयत कर दी, तो हमारा अंतिम समय आ गया। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। इस कोरोना ने, जो कोरोना अभी भी चल रहा है, जिसको बार-बार सरकार भी कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि कोरोना की साहब 3rd वेव आ रही है, माइक्रोकॉन आ चुका है, हम लोग को सबको सतर्क रहना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से, ईश्वर ना करे ये क्या नाम है, ये 3rd वेव उस हिसाब से आया है, जब 2nd वेव आई थी, उस जमाने में मैंने देखा कि यंग बच्चों की डेथ हो गई। अब वो बेचारे, उनके परिवार में यंग बच्चे हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमको सबको मनन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और हमने जब पार्ट 1 किया था, उस टाइम पे डिमांड ये आई थी कि साहब विल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भ्रांतियां बहुत हैं, तो हम सबको मिलके सेकंड पार्ट करना चाहिए। जब हमने सेकंड पार्ट किया तो फिर लोगों की डिमांड आई कि साहब 3rd पार्ट होना चाहिए। हो सकता है कि मेरे वक्तव्य में कुछ चीजों का रिपीटिशन हो, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा सबका एक ही पर्पस है,
जब इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से हम लोग जाएं, तो हमारे जो लीगल हेयर्स हैं उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, मुकदमेबाजी ना हो, ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी हमने ऐसी ऐसी देखी हैं कि प्रॉपर्टी बंद पड़ी हैं, प्रॉपर्टी खंडर हो गई हैं और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो वसीयत जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है जो आपकी डेथ के बाद वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो जो डॉक्यूमेंट है, विल है, दैट कम्स इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन कंसर्न हु इज द टेस्टेटर ऑफ द विल। अब ये क्वेश्चन है हाउ टू प्रोटेक्ट द थिंग्स, because you will not be there when they will be examined either by the court or otherwise. So what precaution we can take during writing the will? These are the important issues. In layman language, we will try to discuss those issues. Will का जहाँ तक सवाल है, will could be formal, will could be informal, will could be oral, will could be writing, will could be registered, will could be unregistered. The mode of the special mode of the proof is कि how to identify the parties. ये सबसे इंपॉर्टेंट विल के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्टीज। इसमें कितनी पार्टी हैं? उसमें मिनिमम है आपका टेस्टेटर, देन 2 witnesses. When 2 witnesses are involved, repeatedly I am saying one thing: if it is possible, either at the time of execution of the will, we should have the medical certificate for examination of the testator by the qualified medical officer, or that should be a part and parcel of the will. Second thing, if it is possible, if it is permissible, the medical officer could be one of the witness. The requirement is कि डॉक्यूमेंट की जो आपकी इंटेंशन है, what is your intention? Sorry, your intention should be reflected in the will documents. Will could be in any language. Suppose the will is in English, then the person who is writing the will on the basis of your instruction, then person has to ensure that he should be in a position to translate the document in the language you understand well. Preferably, will should be in the regional language. Suppose I am basically from Hindi belt, preferably the will should be in Hindi. I am in the Bengali, could be a Bangla language, any language, regional language. Usme there is no restriction, no requirement कि will could be only in a particular language. हिंदुस्तान में जो हमारा भारतीय संविधान है, उन संविधान में उन्होंने 26 भाषाएं दी हुई हैं, तो विल हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि वो जो हम विल करने जा रहे हैं उस विल को राइटिंग में होना चाहिए। जो व्यक्ति विल कर रहा है उसकी इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्सन शुड बी मेजर। अंडर द मेजॉरिटी एक्ट, द पर्सन शुड बी मेजर। द सेकंड इशू इज पर्सन शुड बी इन ए पोजीशन टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मातहत कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हैं, तो आप विल भी कर सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटेंट नहीं तो विल आप नहीं कर सकते। जो whatever my experience says for the last 40 years, there is a lot of problems as per will when will comes to the execution or even in the case of probate. The people take the plea, the person was not the sound mind, person was unwell, person was not in a position to understand what is right, what is wrong. So repeatedly I am saying all the time कि one of the person preferably should be the doctor, qualified doctor as a witness, so that he could do the two things. One is he can prove or he can certify person was a sound mind at the time of execution of the will.
Second thing, he is a qualified doctor. So whether the will was taken free will or not, वो भी उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. द विल, इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि विल जो आप कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टाइम द विल यू शुड बी ए साउंड माइंड. Unsound mind cannot execute a will. Now the catch is, suppose the person a particular time, he's a normally he remains unsound mind, or for a particular period, he is in a position to understand what is he going to write, what is his intention. If a particular time, if we are in position to prove that he was in sound mind at that time, so he can also execute the will. उसमें there is no bar, provided जो प्रोफाउंडर है, he is in a position to satisfy to the authorities कि साथ particular time पे he was a sound mind, he was not a unsound mind. If the person is unsound mind, the will would be voidable to that extent, or at the end of who's claiming, who is challenging the will. So we have to be more careful as far as soundness is concerned or unsoundness is concerned. एक मिसकंसेप्शन है, जो डीफ है, जो डंप है, जो ब्लाइंड पर्सन है, whether they can execute the will or not. Law always permit, if the person is a deaf, dumb or blind person, but by his act and conduct, he is in a position to tell to the person who is getting the instruction from him, he is understanding what he is giving the instruction to the person who is writing the will. So the dumb could also execute the wills, the deaf could also execute the will, blind person could also execute the will. The person should be always there. There could be so many problems like this. Person was insane in that time. Person was not sane. So ultimately, whether we say anything to this extent, we have to be, our experience says, we have to be more clear and more wise while writing the will. We should get the medical certificate, examine the person who is a tester of the will, so that we can eliminate of this type of issues at a subsequent stage. The benefit of the will should be natural, should not be in unnatural way. Unnatural way could be so many types. तो जहां तक आपके नेचुरल का सवाल है, देर इज a lot of difference between will and gift. गिफ्ट आपके एग्जिस्टेंस में आती है आपके लाइफ टाइम में. आप लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन विल आपकी एग्जिस्टेंस में आती है आफ्टर द पर्सन कंसर्न डेथ. So one has to be more careful while executing the will. According to me, the sound mind is concerned, the person capable to understanding the things. Repeatedly, I am saying. Then the second issue is he is in a position to take the judgment, rational judgment, not disqualified by any law. Important. Suppose the tester who is executing a will, or he is disqualified either by operation of law or otherwise, then he cannot execute the will. The basic purpose of the will is dependent. The person should be mature to understand consequence of his or her act. Otherwise, people take the advantage of like this. The person was intoxication, person was ill, so he was not in a position to understand what he's writing, while whether he has signed the document. या कभी कभी केस में ऐसा भी होता है, जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि साहब उनकी तो डेथ हो गई थी, उनका अंगूठा लगवा लिया, बाद में वो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया, बला बला बला. इस तरह के केस भी कोर्ट में बहुत आते. तो हमको सबको एक चीज का मनन करना चाहिए, वो ये है
कि जो ये पीरियड है, बेसिकली कोरोना पीरियड में, इसने हमको 2-2.5 साल में इतना झंझोड़ के रख दिया है। हम लोगों को अपने लास्ट स्टेज का वेट नहीं करना चाहिए। हमको टाइम रहते थे अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी विल करनी चाहिए। तो बेसिकली एज फार विल इज कंसर्न, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट तो दो ही चीज हैं, एक तो इंटॉक्सिकेशन, इलनेस। ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, दोनों चीजें ऐसी हैं, वन हैज टू बी मोर केयरफुल एज फार दिस इज कंसर्न। बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका विल का जो होता है बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ, क्योंकि डेथ के बाद ही ये एग्जिस्टेंस में आता है। तो जो विल के केस में जो प्रोपाउंडर होता है उस पर बर्डन होता है। जो जो सेक्शन 90 कहता है ऑफ द एविडेंस एक्ट, वो ये कहता है, ये बर्डन उस पे है कि ये फ्री विल थी। यदि कोई चैलेंज करता है तो बर्डन सारा प्रोपाउंडर पे आ जाता है कि ये साहब, ये जो विल हुई थी उन्होंने साइन किए थे, उन्होंने 2 विटनेसेस के सामने साइन किए थे, उन्होंने, वो साउंड माइंड थे, वो ऑपरेशन लॉ से कहीं डिबार नहीं थे। तो जब ये विल चैलेंज होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। कई बार कोर्ट में ये भी केसेस आए, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस at a particular time or for a number of years, whether he lose his consciousness or not. Repeatedly courts held that tuberculosis is not such a disease in which we can say कि person has lost his consciousness to that extent. ये बड़ा important aspect है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम डिफरेंट तरह के एलिगेशंस लगाते हैं जिसकी तरह से प्रॉब्लम होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये है कि विल के केस में अक्सर ये आती है कि विल फ्रॉड से तो नहीं है, विल कोअर्सन से तो नहीं है, लॉ इम्प्रॉपर अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसको हम संविदा एक्ट कहते हैं, उसका सेक्शन 15, 16 जो 17 है, उसमें जो नेगेटिव चीज दी हैं वो विल पे भी अप्लाई हुई। बेसिकली जो इश्यू है वो ये है कि जब आप मेजर नहीं हैं, आप कॉम्पिटेंट नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट, हाउ कैन यू एग्जीक्यूट द विल? सो टू दैट एक्सटेंट सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 of the contract act applies to the text. Same way, section 63 of the Indian section applies as far as the proof is concerned. Or there is a plenty of cases like this also. In one case, the issue arises like this: कि will was executed about 30 years back. After 30 years, litigation started. The court held the presumption is कि will is a genuine. Will is a genuine, so there is no reason to prove that. So as far as the will is concerned, what could be the contents of the will? First thing, person who is a tester, he should tell his intention either to the typewriter or to the advocate, or he could write himself. Will is the only document which is not required to be registered under the Registration Act. Will is as good as a simple paper document, but how many things should be there in that way? First, intention of the person. Second, he is a sound mind. Third is he should put his signature after either by reading the will or understanding in his own language. Then only the person should put his signature, mark, or thumb impression, whatever he wants to do. Because sometimes, as far as the deaf and dumb and blind persons are concerned, they may or they may not be in a position to put their signature. Even in some case of illiterate persons are also there. So the law has given the liberty to all of us कि यदि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी है
और उसको अटेस्टेशन कर दिया है, तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो क्या क्या चीज होनी चाहिए इसमें? पहली, बंदा मेजर होना चाहिए। सेकंड, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। थर्ड, उसकी इंटेंशन के बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट लिखा जाना चाहिए। वो जो विल है वो अपने हाथ से लिखें, किसी से लिखाएं, टाइप कराएं, कोरे कागज पे लिखें, स्टैम्प पेपर पे लिखें, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन नॉन जुडिशियल पेपर पे, स्टैम्प पेपर पर लिखने से एक एडवांटेज होता है कि सपोज टुडे इज द 9th of January 2022, the person has purchased the document, purchased the non-judicial stamp paper today, or the will has been executed today. So one thing would be clear at the time when the will would be examined, कि at least this will has not been executed before 9th January 22. प्लस पॉइंट उसका ये है। दूसरी बात ये आती है कि पर्पस ऑफ अटेस्टेशन क्या है। पर्पस ऑफ अटेस्टेशन, one is that the attestator will not be available at the time of examination of the document either by the court or the competent authority or otherwise. So these are the attesting witnesses. They have to confirm. What they have to confirm? कि उन्होंने जो टेस्टेटर है उसने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के बिल को साइन किया, इस किए, इस पे अपना मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया। इस अटेस्टेशन के लिए जरूरी है। अब चूंकि हम लोग डिजिटल एराना में हैं इस टाइम, ये हमेशा बेटर होता है कि जिस टाइम टेस्टेटर अपनी विल पर साइन कर रहे हैं तो वो उसके नीचे अपना आधार नंबर भी लिखते हैं, तो वो अच्छा होता है उनको आइडेंटिफाई करने के, ही इज द सेम पर्सन। सेम चीज अप्लाई होती है एज पर दीज टू विटनेसेस आर कंसर्न। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्टेटर का, दोनों विटनेसेस का कोई ना कोई आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, जिसमें आपका जब वो सिग्नेचर करते हैं तो उस टाइम वो अपना मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के केस में अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, अपना वोटर आईडी नंबर डाल सकते हैं। पहले उनको अपना नाम लिखना चाहिए, अपना पूरा एड्रेस लिखना चाहिए, उसके बाद अपना सिग्नेचर करने चाहिए। और अक्सर ये भ्रांति रहती है कि whether there should be 2 witnesses or one witness is sufficient. Law is very clear on the issue कि there should be minimum 2 witnesses in the case of the will. Preferably, I am repeatedly saying the preferably one should be always doctor. Either we should get the medical examine ourselves before execution of the will, or the medical officer could be one of the witnesses. As per the second witness is concerned, there are a lot of confusion on the issue. Law is permitting up to this extent, even your servant, your driver, whosoever you name any person, he or she could be one of the witnesses as far as the will is concerned. The सर्वेंट भी हो सकता है, डॉक्टर मेडिकल भी हो सकता है। प्रिजम्पशन ये है बेसिकली कि पर्सन इज ए साउंड माइंड अनलेस एंड अनटिल प्रूव अदरवाइज। बट टू एलिमिनेट ऑल दिस थिंग्स which we have faced in a number of cases when the matters come up to the Supreme Court, always better few things. For the sake of repetition, I would like to tell everybody कि पहली बात तो यह है, विल का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। विल प्लेन पेपर पर हो सकती है,
विल आपके नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे हो सकती है, विल आप चाहें तो विल आप सब रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब आप सब रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर कराते हैं तो उस केस में जो सब रजिस्ट्रार है वो भी एक विटनेस हो सकता है, लॉ ये परमिट करता है। लॉ ये नहीं कहता है कि आपको दोनों विटनेस अपने साथ लेके जाने जरूरी, लेकिन यदि सब रजिस्ट्रार आपसे एग्री करता है तो जो टेस्टेटर है he will put the signature in front of the registrar. Registrar could be one of the witness because the will has been signed by the person testator before him only. और दूसरा विटनेसेस कोई भी हो सकता है। अब ये बार बार ये इश्यू राइज होता है कि वेदर विल शुड बी प्रोबेट और नॉट। आई एम रिपीटली सेइंग दिस थिंग, will is the only document which does not require in fact any registration, any probate. कुछ लोग कहते हैं कि साहब जब हम विल को लेके जाते हैं जीडीए में या हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाते हैं या हम नगर पालिका में जाते हैं तो वो हमको कहते हैं कि इसको प्रोबेट करा के लाइए। ज्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं इंक्लूडिंग यूपी जो ये कहते हैं, ज्यादातर स्टेट्स ये कहते हैं कि प्रोबेट इज नॉट नेसेसरी, बट व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट और मेजर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, always preferred कि will should be one can try for the probate of the will also. लेकिन law is not saying to that extent. लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ ये कहता है कि आपने एक बार विल एग्जीक्यूट कर दी है तो विल एग्जिस्टेंस में आएगी जो टेस्टेटर है उसकी डेथ के बाद। जब उसकी डेथ के बाद आएगी, जो प्रोपाउंडर है उसकी ड्यूटी बनती है कि विल के हिसाब से जो इंटेंशन थी उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, वो उस हिसाब से उसको हो। आप यदि स्टैंड लेते हैं बिफोर द अथॉरिटीज तो वो दे कैन नॉट कंपेल कि विल शुड बी प्रोबेट बाय द सिविल कोड। और यदि आपको प्रोबेट कराना है तो उसके केस में आपको एज ए डिक्लेरेटिव सूट दाखिल करना होता है बिफोर द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज में क्या नाम है जो भी है उसके सामने जब आप पेटिशन दाखिल करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल करते हैं, उस पर नोटिस जाता है। नोटिस पे यदि कोई उसको चैलेंज करता है तो दोनों पार्टीज का सुन के और एविडेंस को देख के उसका निर्णय हो जाता है, विल प्रोबेट हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा ही कहता आया हूं विल ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, स्टेट ऑफ यूपी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जो आप उसका अपनी फैमिली में अदर देन फैमिली करना चाहें तो आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। इंटेंशन यदि आपकी एम्बिग्यूटी है, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम टू दैट एक्सटेंट। सो रिपीटेडली वी आर रिक्वेस्टिंग टू एवरीबॉडी whenever you are sorry, whenever you are executing the will should be in simple word। ज्यादा उसमें फंसी नहीं होना चाहिए कि कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर में, दो वी बिलोंग टू द लीगल फैकल्टी। लेकिन मेरी एडवाइस सबको यही रहती है, हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि विल के केस में हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो सावधानी रखने वाली बात है वो बेसिकली ये सावधानी रखने वाली बात है कि जो विल हम करने जा रहे हैं वो विल हमारी अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। हम उसको इफ एंड बट बहुत ज्यादा ना लगाएं। यदि हम बहुत ज्यादा इफ एंड बट लगाते हैं तो उस केस में विल के एग्जीक्यूशन में अक्सर दिक्कतें आती हैं। हमको क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं।
एक पिछले पिछले जो हम लोग जब चर्चा वसीयत की कर रहे थे, तो एक इशू अराइज हुआ था कि जो हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी है उसके केस में क्या हम अपने शेयर की भी विल कर सकते हैं। इसमें दो व्यू हैं। नॉर्मली जो 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 लॉ है वो ये है कि विल आपकी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसकी ही आप विल कर सकते हैं, आप दादा लाई प्रॉपर्टी की नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जो कोपार्टनर्स आप हैं, तो जो आपका कोपार्टनर्स का राइट है, उस राइट को उन्होंने उनको ये अलाउ किया है कि ये उसको कर सकते थे। विल के केस में जो अक्सर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसको आखिर किया कैसे जाए। घूम फिर के इसमें जो बर्डन है वो बर्डन जो है प्रोफाउंडर पे होता है। प्रोफाउंडर को ये जिम्मेदारी रहती है कि यदि विल को किसी भी लीगल हेयर ने चैलेंज किया है तो उस केस में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये प्रूव कराए कि ये जेन्युइन विल है। मैं हमेशा ये कहता आया हूं और मैंने पहले पहले वक्तव्य में भी बात कही है, जब भी आप विल करें हमेशा कोशिश करिए कि विटनेसेस जो हों वो उम्र में आपसे 10-15 साल छोटे हैं। देखिए, ईश्वर के विधान को तो हम लोग नहीं टाल सकते, लेकिन प्रिजम्पशन ये रहती है समाज में, व्यवहारिकता में, कि एक एज के बाद व्यक्ति को इस दुनिया से प्रस्थान करना है। आज जब से कोरोना आया तो हो तो कभी भी किसी के साथ भी सकता है, लेकिन ये हमेशा बेटर होता है कि यदि हम उसको किसी अपनी एज से कम के लोग को विटनेसेस बनाएं, क्योंकि वो लॉन्गेविटी की जहां तक बात है, उस लॉन्गेविटी में वो हम लोगों से पहले जो है नहीं जाने वाले हैं। तो जहां तक इस बात का सवाल है कि उसको एग्जामिन कैसे किया जाएगा, उसमें रिपीटेडली जो मैं कहना चाहता हूं और कह रहा हूं लगातार कि हमको सावधानी रखने की जरूरत है। सावधानी यदि हम रखेंगे, वसीयत बनाते रहें, तो हमारी प्रॉपर्टी बची रहेगी। जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है वो हमें ऐसी उम्मीद रहती है कि हम अपनी अपनी इच्छा अनुसार उसका डिवीजन कर सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट तक ये वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि व्हेन द मैटर केम बिफोर द कोर्ट, कि साहब ये विल है एक्स डेट की, और एक्स डेट में ही या उससे नेक्स्ट डेट उनकी डेथ हो गई, तो जो टेस्टेड है वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उसको किस तरह से उसको देखा जा सके। वो उसको अ, वो उसको उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी कि वो उसको अपना सही और गलत समझ सके। तो ऐसे केस को एलिमिनेट करने के लिए मैं बार बार यही कहता हूं कि जब भी हम विल करेंगे, हमको, मैं दोबारा फॉर द सेक और रिपीटिशन ये कहना चाहूंगा कि विल के केस में आपको अपनी इंटेंशन बतानी है। आपकी इंटेंशन वैसे तो ओरल और राइटिंग दोनों में किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन ये हमेशा बेटर होता है कि हम राइटिंग में करें। और हम यदि किसी को डिक्टेशन दे रहे हैं या अपनी इंटेंशन बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति कंसर्न को, चाहे वो टाइपिस्ट है, चाहे वो वकील है, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य है, वो आपको पढ़ के सुनाए। अब पढ़ के सुनने के बाद जब आप संतुष्ट होते हैं, तब उस पे आप साइन करें, और साइन करने के बाद आप अपना उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन रखें। यदि संभव हो तो आप अपना उसमें फोटो भी लगवा सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको प्रिकॉशन इसलिए कह रहा हूं कि ये सब आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन जब विल चैलेंज होती है, ये सब समस्याएं उस समय आती हैं।
तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जितनी मैं आपको प्रिकॉशन की बात कर रहा हूं, वो ये बात कर रहा हूं कि प्रिजम्पशन तो ये है कि पर्सन इवन इन द केस ऑफ इलिटरेसी the document before signing, ये presumption है. लेकिन whenever there is a challenge, then the problem start from there onwards. So to eliminate those things, we have to be more careful. और मेरा सबसे बार बार ये निवेदन है कि हम लोग किसी भी एज में हैं, हम ये इस बात का वेट नहीं करें कि हम बीमार होंगे तब हम विल करेंगे, या हम उस समय करेंगे जब अंतिम समय होगा, या हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे हम तब विल करेंगे. उसका वेट नहीं करना चाहिए. अक्सर ये भ्रांति रहती है कि साहब हस्बैंड के नाम भी प्रॉपर्टी है, वाइफ के नाम भी प्रॉपर्टी. यदि हस्बैंड जो है अपने बच्चों के नाम विल कर देता है तो वो बच्चे वाइफ को नहीं देखेंगे, वाइफ को प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करेंगे, या वाइस वर्सा है. उस केस में मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि हमेशा बेटर होता है कि हस्बैंड भी विल करें, वाइफ भी विल करें. हस्बैंड अपनी विल में ये कहें कि ये मेरी प्रॉपर्टी, जब तक ये मेरी वाइफ जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी का उपयोग वो करें. वाइस वर्सा ऑल्सो, वाइफ भी ये कहें यदि मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे हस्बैंड इसको यूज करेंगे, उसके बाद बच्चों पे जाए. दिस कुड बी वन ऑफ द वे आउट टू एलिमिनेट कि साहब जब बुढ़ापा आ गया है, बच्चे नहीं सुनते हैं, अक्सर समाज में इस तरह की कुरीतियां हैं. टू एलिमिनेट दोज थिंग्स, टू प्रोटेक्ट आइदर हस्बैंड और वाइफ, we can think over for executing will in such a way so that there is no problem for the surviving of a person concerned. Repeatedly I am saying this. So these are the things which has to be keeping in the mind. और इसमें सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो साउंड माइंड की आती है कि अक्सर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि साहब ये जो विल की है इन्होंने, उस टाइम तो हमारे पिता या माता या जिसने भी विल की है वो उनकी हालत ही ऐसी नहीं थी वो कुछ समझ सकें, वो देख सकें, वो पढ़ सकें. तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि आप डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेंगे या आप डॉक्टर को एक विटनेस बना लेंगे तो आपके जो प्रॉपर्टी की जो झगड़ेबाजी शुरू होनी है उससे आप बच सकते हैं. साउंड माइंड का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. सेकंड थिंग कि रेशनल जजमेंट से बेसिकली पर्पस क्या है? रेशनल जजमेंट से कि जो वो करने जा रहे हैं उसका अच्छा बुरा वो समझ पा रहे हैं. यदि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो विल करने को पर्पस नहीं. और विल हमेशा इसलिए फायदेमंद होती है कि जो आपका गिफ्ट और विल में बेसिक आप कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंस क्या है? गिफ्ट आप कर सकते हैं लाइफ टाइम, अब वो इफेक्टिव होती है, विल होती है, एजुकेशन में आती है आफ्टर डेथ. विल आपने एक बार कर दी तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं. बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आज आपके पास 4 प्रॉपर्टी है और आपके लाइफ टाइम में उसमें 10 प्रॉपर्टी और इकट्ठी होगी. आपका पहला ये था कि साहब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी लड़की मेरी सेवा कर रही है, मैं लड़की के नाम करूं. लेकिन आफ्टर स्पेशन ऑफ टाइम लड़के सेवा करने लगा. तो आप उस टाइम बैलेंस कर सकते हैं. जो आपने पहली विल करी है उसको आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी रिवोक करने की बात आए या आप दूसरी विल लिखना चाहें तो आपको ये लिखना इन सुपरसेशन ऑफ माय अर्लियर ऑल विल्स, ये मेरी लास्ट विल है. यदि आप लास्ट विल नहीं लिखेंगे और 2 विल हैं, एक बेटे के पास है, दूसरा बिटिया के पास है या किसी और के पास है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन इट. सो whenever you are going to execute this second will, you should always mention कि this is my last will.
और देयर इज नो बार whether you can execute a will, one will, two will, three will, four will, number of there is no dearth to that extent. But whenever you are executing the second or third will, you should say this is my last, so that the problem could be eliminated to extent. The issue arises गिफ्ट में और विल में एक बेसिक जो पर डिफरेंस है वो ये भी है कि आपने एक बार गिफ्ट कर दी तो गिफ्ट के बाद आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द डिग्री ऑफ कोर्ट। जबकि विल के केस में आप जब चाहें जैसे चाहें आप विल कर सकते हैं, और जो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है आप अपनी फैमिली में दे सकते हैं, आप चैरिटी में दे सकते हैं, आप लव अफेक्शन में दे सकते हैं। देयर इज नो डर नो टू दैट एक्सटेंट, बट द इंटेंशन इज कि should be look like natural, should not be looks like कि फ्रॉड से किया है, कोहर्सन से किया है, इलिसिट रिलेशन से। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि आपका जो साउंड माइंड है, अक्सर ये होता है कि साहब ओल्ड एज में व्यक्ति के बच्चे उनको साथ नहीं देते हैं, वो किसी और का सहारा लेते हैं, वहां रहते हैं। अक्सर ये केस उन केसेस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो उस तरह के केस में भी आपको साउंड माइंड थंब रूल एक ही है। थंब रूल ये है आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राइटिंग में होना चाहिए। तीसरी बात जो है आपका पढ़ के आपको साइन करना चाहिए या अंडरस्टैंड करके साइन करना चाहिए, और जो दो अटेस्टिंग विटनेस हैं वो होने चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड माइंड का, मैं बार बार कहता हूं कि यदि यदि संभव हो तो एक मेडिकल ऑफिसर हो या मेडिकल सर्टिफिकेट हो, जिससे आप यू कैन एलिमिनेट सो मेनी। ये मेरा मोटा मोटा कहना था। बाकी मैं अरविंद जी से ये कहूंगा, आग्रह करूंगा कि जो हमारे साथी हैं वो कोई क्वेश्चन रेज करना चाहें तो उन क्वेश्चंस का भी जवाब दिया जाए, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि घड़ी 7 बजा रही है। चलिए मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। जी बताइए। जैसे विल हमने कर दी और जी विल के बाद बहुत से लोग काफी साल तक 10 साल 15 साल 20 साल तक उसका कोई एक्शन लेते नहीं है। तो जी क्या विल के बाद, जैसे अगर सपोज किसी की डेथ अब 2000 में हो गई है, 2021-22 चल रहा है, तो जी क्या हमें इमीडिएट जैसे म्यूनिसिपैलिटी में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब बहुत से लोग डिले कर देते हैं इसमें। देखिए देखिए मेरा मेरा मानना ये है कि जितना जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। जितना आपको डिले, अक्सर क्या होता है कि आपने मान लीजिए उसको 10 साल तक आप रखे बैठे रहे, और 10 साल के बाद आप म्यूनिसिपैलिटी में गए या जीडीए में गए या डीडीए में गए या आप और जगह गए, तो वो लोग ये कहेंगे कि जाना आप 10 साल क्या कर रहे थे, आप जस्टिफाई करते रहिए। तो डेथ के बाद हमेशा मेरी एडवाइस सबको यही होती है कि जब व्यक्ति की डेथ, जो टेस्टेड उसकी डेथ हो जाती है, तो आप उसकी उनके डेथ सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए, और विल की जो है ना, विल को आप, जो विल आपकी एग्जीक्यूट हुई है उस विल को आप किसी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करा के उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को और डेथ सर्टिफिकेट को, दोनों को एप्लीकेशन लगा के कंसर्न अथॉरिटी में अर्लिएस्ट फाइल कर दे, तो दैट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। धन्यवाद। हालांकि लॉ में तो यहाँ तक प्रजम्पशन है कि यदि 30 साल तक आपने उसको कुछ नहीं किया है तो 30 साल के बाद उस विल को ये माना जाएगा कि उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कहता है कि यदि कोई विल 30 साल पहले हुई है और 30 साल के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उसको आप प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। ये है इसमें 30 ईयर्स या 14 ईयर्स? 30 अच्छा सर, एडवांस पोजीशन है ना ये तो। चलिए सर, बहुत सुंदर रहा, और ये सबसे अच्छा ये रहा कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया एएफटीपी के DK गांधी साहब आए, और जमुना शुक्ला जी जो सेक्रेटरी जनरल है वो आई,
और केसी कौशिक साहब, जो कि इनका अपना वसीयत पे चल रहा है, धारावाहिक चल रहा है, 3 सीरियल आ चुके हैं इनके अपने, नेक्स्ट अपना फिर आगे आगे आएगा। और बहुत अच्छा रहा गांधी साहब, हमके हृदय से आभार प्रकट करके गांधी टेक इट साहब इजी, ने टेक इट। समय निकाला, हम जैसे आभार प्रकट करते हैं और आने वाले समय के अंदर और बुलंदियां रहेंगी। अब हम आदरणीय जमुना शुक्ला साहब से, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बनारस से हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद के आदरणीय दिए जाए। आदरणीय जमुना शुक्ला जी। जी, बहुत बहुत पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ अरविंद शर्मा जी, स्वाध्याय व चिंतन मंचन को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही सुंदर ये प्लेटफॉर्म है और बड़ी सामयिक चीजों को लेके आपने ये जो सब्जेक्ट था, ये लीगल सब्जेक्ट है, नो डाउट। हालांकि स्वाध्याय और चिंतन में मुझे लग रहा है मुझे शुरू से देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है, लेकिन मेरे तो ये टोटली हमारे ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन वाला टॉपिक आपने उठा लिया और बहुत ही सही। हम सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डीके गांधी सर का, और हमारे आज के मुख्य वक्ता केसी कौशिक सर का, कि उन्होंने इतनी बारीकियां बताई। कौशिक जी, बस थोड़ा सा उसमें मैं शायद 15 मिनट नहीं सुन पाई कि विल कैन बी रिन्यूड, मतलब वो कई बार बनाई जा सकती है, इट कैन बी चेंज्ड। शायद ये आपका मेरा 15 मिनट पूरा ट्रैवलिंग में कट गया, वो मेरा नहीं सुना, तो वो कवर हुआ कि नहीं। और दूसरा चीज आपने जो सर बोला था कि जो टैक्स इफेक्ट्स है, इसमें टैक्सेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा गांधी सर ने कहा कि अगली बार उसको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा हम लोग एलाबोरेट कर दे, क्योंकि विल के थ्रू हम टैक्सेशन प्लानिंग बहुत तगड़ी है sir, man, it is all tax free. We can gift anything to anyone by will. It is totally tax free, whereas gift is taxable if it is not given to blood relation. तो ये चीजें टैक्स प्लानिंग के लिए ज्यादा यूज होती हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा अपने सीमा से बाहर बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीच में मिस हुआ, तो मैंने कहा कि ये कहीं मिस रह गया हो तो ये कवर हो जाए, या इस पे हम अगर स्वाध्याय चिंतन अगले उसमें भी करेंगे। और बहुत बहुत आभार जो हमारे विद्वत जन इस सभा में थे, सभी ने बहुत धैर्य से सुना और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए, जिससे और ज्ञानवर्धन हुआ। और इसी के साथ मैं जो भी चैनल चल रहा है उनको सभी को आभार व्यक्त करूं, टेक्निकल सपोर्ट को करती हूँ। मुझे आपने ये मौका दिया, यहाँ बुलाया और आभार प्रकट करने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जमुना शुक्ला जी, धन्यवाद आदरणीय डीके गांधी साहब, और धन्यवाद आदरणीय केशव साहब। और जैसा कि हमारा अरविंद जी 1 सेकंड और लूंगा जी सर। अभी जैसा वीडियो अनिल कपूर, जमुना शुक्ला जी ने जो क्वेश्चन रेज किया, वो मैं उसको फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन बता देता हूँ। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप जितनी बार चाहें उसको इन सुपरसेशन पहले का कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये लिखना होगा, ये मेरी लास्ट विल है। यदि 2 या 3 विल रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, जो लास्ट डेट की विल है, ये मेरी लास्ट विल है, उसमें ये लिखना आपको आवश्यक होता है। जी जी जी, चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि हमारा स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक होता है कि हम लोग एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ इसको करते हैं, समाप्त करते हैं। और आज का विचार है संकट में ईमानदार रहें। संकट में ईमानदार रहें, क्रोध में शांत रहें। संकट में ईमानदार रहें, क्रोध में शांत रहें। जब धन मिले तो सरल रहे। जब धन मिले तो सरल रहे, और जब अधिकार मिले तो विनम्र रहे। आइए हम 3 बार अपना ओम का उच्चारण करते हैं। सभी लोग अपने को म्यूट कर लेंगे ताकि ब्रह्मांड तक हमारी आवाज पहुंचे। शांति शांति शांति।